Okay. So last time we were talking about the entire path of breathing in human. We have seen that through nose the air enters in, and thereafter there is internal opening in the pharyngeal region. That internal opening is also called as nostril, internal nostrils. So it starts from outer nostril or external nostrils. Thereafter nasal cavity. In nasal cavity here three structures are shown, right? यहाँ पे तो ये आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, just you should know that there are some bony structures, and through these bony structures the air passes very slowly. Why it is happening? So that in this region the air will remain for longer time. जितने ज्यादा टाइम तक air will be present here, it will get the temperature of the body. अगर high temperature पे है बाहर की air, तो it will come to a little bit lower temperature in this region. If अगर low temperature पे air आ रही है, winter season है or like that, so then a little warmth will be given to that air, and thereafter the air will be entering through the internal nostrils into the pharyngeal region. Now this pharyngeal region, it is present in the throat region. In pharyngeal region, opening for food is present, so food pipe is present. Opening for air is present, so windpipe is present. And both these, they will separately go towards their respective destination. So food pipe, like esophagus, it will continue in the digestive system, and windpipe, that is trachea, it will continue in the respiratory system. Now, if we talk about this trachea, you will find that कि trachea का structure ये uniform नहीं बताया है आपको, ऐसा पूरा plain नहीं बताया, जैसे कि esophagus का structure पूरा plain बताया जाता है. So why is it so? Because some semicircular ring-shaped structures are present in the wall of the trachea. These are called as cartilaginous ring. So the trachea, it is lined with, its wall is lined with cartilaginous rings, and these cartilaginous rings, they support the tracheal structure. They do not allow the tracheal structure to collapse, क्योंकि continuously there will be inward passage of air, outward passage of air. ये अगर बहुत लूज ट्यूब रही तो हो सकता है कि इट में श्रिंक और इट में एक्सपांड ड्यू टू दैट एयर, but this is not allowed because this trachea, it is lined with these tracheal rings. These tracheal rings, they are made up of cartilages, and these are semicircular C-shaped cartilaginous rings are present. Okay, so that the trachea should not collapse. पीछे के साइड से वो सी क्यों सील नहीं हुआ, यानी पूरा सर्कुलर नहीं है, क्योंकि पीछे के साइड से इसोफेगस इज प्रेजेंट. तो पीछे के साइड से ऑलरेडी द सपोर्ट इज प्रेजेंट टू द ट्रकिया. सो सपोर्ट लगेगा सामने के साइड से, एंड देयर इट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स. Now this trachea, it will reach up to the level of lungs, and then it will branch into two branches. This is first branch which is shown here. The other one is not shown because here the chest bone का structure जो है वो यहाँ दिखा दिया इधर, इसलिए इधर का structure हमको नहीं दिख रहा है. So two bronchi, they are created after the branching of the trachea. Each bronchus, it will enter into the lungs. Now, after entering into the lungs, the bronchus is further divided into the bronchioles.
यानी और narrow branches will be there, and ultimately these bronchioles, these will further divide into small ducts. What are these ducts? These ducts are called as alveolar ducts. यानी यहाँ पे अगर हम ये वाली ट्यूब की बात करें तो these tubes they are the bronchi. फिर ये ब्रोंकाई से लास्ट अल्वियोलाई तक वो आएंगे, तो देन दोज विल बी कॉल्ड एज अल्वियोलर डक्ट्स. और फिर सबसे अंदर साइड में दी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. सॉरी, so these sac like structure, they are called as alveoli. What is the function of alveoli? So you know from 9th standard that these alveoli, their walls are lined with squamous epithelium. And what is the purpose of this squamous epithelium? उनकी wall इतनी thin क्यों है? So that whatever oxygen will come here, it will easily diffuse out into the blood, and whatever CO2 is present in the blood, it will easily diffuse into the alveoli. तो जितने थिन इसकी वॉल रहेगी उतना इजीली ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूज्ड आउट ऑफ इट एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इनसाइड इट. मैं एक बार रिपीट कर रही हूं. We started with the nostril. Then we have seen that in the nasal cavity, some bony structures are there through which the air passes really slowly so that the temperature will be brought to the core temperature of body. Thereafter, with the help of internal nostrils, the air will enter in the pharyngeal region. Now this pharynx, it also opens into the windpipe, which is called as trachea. ये trachea में ही शुरुआत का जो part है, that is larynx, and larynx is the sound box. उसका हमको कुछ ज़्यादा detailing नहीं करना है. Now through this trachea, which is guarded by with the help of C-shaped cartilaginous ring, it will branch into 2 bronchi. Each bronchus is entering into each lung. In each lung, the bronchus further branch into the bronchioles. The bronchioles further branch into alveolar ducts, and alveolar ducts, they open into the air sacs, which appear like this. And these air sacs, these are alveoli. The alveoli are lined by thin squamous epithelial tissue. So their wall is very, very thin. कोई मस्क्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर अल्वियोलाई पर, कोई एडिशनल लेयर्स नहीं है, कुछ भी नहीं, बस एक यूनिसेल्यूलर वॉल बन गई, सिंगल लेयर ऑफ सेल. इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम एंड देयरफॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन into the blood and easy diffusion of carbon dioxide from the blood it will take place. लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि ब्लड आया कहां से? यहाँ के स्ट्रक्चर में तो मुझे ये दिख रहा है ब्रोंकस, ये ब्रोंकियोल, ये ब्रोंकियोल वापस ब्रांच कर रहा है अल्वियोलर डक्ट में और डायरेक्ट मुझे अल्वियोलाई दिख रहा है. कहाँ है ब्लड वेसल्स? तो हर सैक के सराउंडिंग the capillaries are present, blood vessels are present. Now again you might be remembering कि even capillaries they are very thin walled structure. तो कैपिलरी की वॉल भी स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होती है, फ्लैट एपिथेलियम, फ्लैटेस्ट ऑफ ऑल. क्यों? ताकि इसमें से भी डिफ्यूजन हो सके. Now the carbon dioxide in the capillary, it will move into the alveoli, and oxygen into the alveoli, it will move into the blood vessel. So around the alveoli, throughout, these network of capillaries is present. These capillaries bring deoxygenated blood to the alveoli. Here they will be oxygenated, and thereafter the oxygenated blood, it will be taken back towards the heart. Shreyas, you have to wait for some time to ask question. Just wait for little time. Okay. So in this way, the entire communication, the entire diffusion takes place.
Now what will happen? The oxygen which has reached into the capillaries, now this oxygen, it will be brought to the heart. Through heart, it will be supplied throughout the body, and thereafter the entire process कि जिसको जिसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, जहां पे जिस ऑर्गन की जितनी रिक्वायरमेंट है, so that oxygen it will be supplied to those organs. So basically inside the lung this type of function takes place. ये आपको और अच्छे से समझेगा जब हम इसका एक्चुअल एनिमेशन देखेंगे, वीडियो देखेंगे. सो आफ्टर सम 5 to 10 मिनट्स जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद वी विल गो फॉर अ वीडियो. Let us read the same thing from this slide, and I will thereafter I will take the questions. So air enters through the nostrils. The hair and mucus traps the dust particles. It then passes through the pharynx, larynx, trachea, bronchi, and enters the lungs. The trachea has rings of cartilage, C-shaped rings of cartilage, which prevents it from collapsing where there is no air in the trachea. The bronchi divides into smaller tubes called bronchioles, which ends in tiny air sacs called alveoli. The alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of gases takes place. The alveoli helps to increase the surface area for the exchange of gases. जितने alveoli ज़्यादा, उतना surface area ज़्यादा, उतना gaseous exchange it will be more. So let us see some few questions, and thereafter we will go for mechanism of breathing, how the lungs expand and how the lungs they contract. बोलो श्रेयस. मैम ये लंग में हर एल्वियो के आजू बाजू कैपिलरीज रहती क्या? हर अल्वियोलाई के, हर एयर सैक के सराउंडिंग, एवरी. ओके, यस प्रणव. मैम वो जो जनरली हमें बताते कि स्मोकिंग करने की वजह से लंग्स खराब हो जाते, ब्लैक हो जाते, तो मैम वो जो निचोड़ते वो पानी क्या सही में लंग्स से निकलता है ऐसा जो लिक्विड रहता है? सॉरी मैम, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, पर कैन यू आंसर? नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे यहाँ तक समझा तूने जो कहा प्रणव कि स्मोकिंग की वजह से लंग्स ब्लैक हो जाते हैं क्या? हाँ, हो जाते हैं. उसका आंसर यस. पानी निचोड़ना मुझे नहीं समझ रहा, क्या कह रहा है तू? नहीं मैम, वो कोई भी जनरली फिल्म शुरू होने के पहले वो जो मुकेश के एड आती है उसमें वो लंग्स निचोड़ के दिखाते ना, वो एक कंटेनर में. हाँ, कि वो ब्लैक पार्टिकल्स आ रहे हैं. हाँ, वो कार्बन पार्टिकल्स है. तो यानी अगर आप उसमें वाटर डाल के, इफ यू स्क्वीज इट, तो यू विल गेट दैट ब्लैक वाटर. द रीजन इज द कार्बन पार्टिकल्स. जो स्मोकिंग के बाद बर्निंग हो रहा है ना, धुआं जा रहा है, तो उसके साथ वो कार्बन पार्टिकल्स भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं. मैम ये एक्यूमुलेशन कहाँ होता? ना लंग्स में. नहीं मैम, जैसे लंग्स में तो एल्वियोला में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ एल्वियोला में भर जाते क्या कार्बन पार्टिकल्स? राइट, करेक्ट, वहीं भर जाएंगे वो कार्बन पार्टिकल्स. तो फिर मैम उनका एयर इनटेक कैसे होगा, ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा फिर? क्योंकि अगर कार्बन पार्टिकल्स रहेंगे तो फिर अगर ऑक्सीजन आया तो कार्बन से रिएक्ट होकर CO2 बन जाएगा. नहीं रे बेटा, ऐसे थोड़ी होता है कि कार्बन से कहीं पर भी बिना बर्निंग के वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट होगा. उसको एनर्जी, आपको कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी बनते हुए दिखता है, यू नीड टू सप्लाई एनर्जी देयर ना. आपको कुछ जलाना पड़ेगा ना, तब कहीं जाके CO2 बनेगा. समझ में आ रहा है प्रणव? यस मैम. हाँ, ठीक है. यस श्वेता. मैम, बोलो बेटा. the number of alveoli are defined in every human being. एक्चुअल डिफाइंड यानी उसको मिलियंस में कहा जाता है, और एक अप्रोक्सीमेट रेंज भी है. लेकिन अगर आप ऐसे, मतलब नहीं होगा कि ईच एंड एवरी ह्यूमन विल हैव अ डेफिनेट नंबर, ऐसा नहीं होगा, बट हाँ वो रेंज रहती है. सॉरी सॉरी सॉरी, बोलो श्वेता. मैम, does it depend on the nutrition of that person नहीं, or like anything? नहीं 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 नहीं, न्यूट्रिशन पे नहीं रहता है वो.
So it is determined during the growth कि वो development कैसी हो रही है, and also determined genetically. तो it is not dependent on कि आप कम अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आपके alveoli कम रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. And ma'am, why will that means trachea collapse when there is no air in that? अरे आप किसी पाइप की बात करो ना जो एकदम लूज पाइप एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो अगर वो उसमें एयर नहीं रहेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर वो जो दोनों साइड्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे उस तरह से. Okay ma'am, thank you ma'am. हाँ, यस उदय. मैम वो एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पे कैसे आता, मतलब एग्जैक्टली मतलब नोज पे जाता और फिर बॉडी टेम्परेचर पे कैसे आता? अरे अपने पूरा जो नेजल कैविटी है या जो भी आप फेस कंसिडर कर रहे हो या जो भी बॉडी पार्ट, उस हर जगह पे ब्लड वेसल है ना बेटा, और उस ब्लड वेसल में से ब्लड एक डेफिनेट टेम्परेचर पे मूव हो रहा है, तो एयर अगर उस टेम्परेचर पे यानी उस ब्लड के साथ यानी उस रीजन के साथ कांटेक्ट में आएगी तो एयर का भी टेम्परेचर आपको पता है ना कि द टेम्परेचर यानी एनर्जी इट मूव्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. यस मैम. हाँ यस. यस पराग. मैम जैसे वो ट्रकिया के लिए ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है, फिर इसोफेगस कोलैप्स हो सकता है क्या वैसे? नहीं, इसोफेगस बहुत मस्क्यूलर होता है बेटा, ट्रकिया उतना नहीं होता, तो इसोफेगस जनरली उसकी वजह से उसको टफनेस मिलता है. दैट इज व्हाई इसोफेगस विल नॉट रिक्वायर दैट स्ट्रक्चर व्हाइल ट्रकिया विल नीड दैट. ओके फाइन. So now let us move ahead for the mechanism. What is the mechanism of inhalation and exhalation? Here two types of muscles are very very important. In our textbook only one type is given and that is given correctly क्योंकि only diaphragm is suggested in our textbook. दूसरी मसल्स नहीं बोली है क्योंकि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो डायफ्राम का है. जो हम इंस्पिरेशन या इनहेलेशन करते हैं उसमें 80% कॉन्ट्रीब्यूशन डायफ्राम का है, इसीलिए हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ डायफ्राम के बारे में बताया है. लेकिन हम एक और मसल की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज EICM. या क्या है ये? इट इज external intercostal muscles. इंटरकोस्टल क्या होता है? बिटवीन द रिब्स. तो जो कोस्ट है उसको रिब समझ लिया है, यानी रिब को कोस्टल एरिया कंसिडर करके और उसको उस तरह से नाम दिया हुआ है. Okay, so we are considering that the inspiration or in general breathing, it depends upon the movement of the contribution of two types of muscles. One is the diaphragm and the other one is the muscles which are present between the ribs. ये क्यों हमको मसल्स भी कंसिडर करने हैं? क्योंकि आप ब्रीदिंग एक्शन करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि ब्रीदिंग एक्शन में हमारा जो रिब केज है वो भी ऊपर और सामने, पीछे और नीचे, ये दोनों टाइप की मूवमेंट हो रही है. ऊपर और सामने कब हो रहा है? ड्यूरिंग इनहेलेशन. बैठे बैठे ट्राई करके देखो, यू ट्राई टू इनहेल द एयर, यू विल फाइंड दैट योर चेस्ट रीजन और योर रिब केज इट इज कमिंग फॉरवर्ड एंड लिटिल अपवर्ड. And when you exhale, when you remove the air from your lungs, the rib cage it goes backward and downward, right? So ये पूरा mechanism समझने के लिए we will consider both these type of muscles. Let us see that structure in little detail और उसके बाद फिर जो writing material है वो एक बार पढ़ेंगे, then we will go for the video. Now we are observing these are the lungs. In just below these lungs, the diaphragm is present in which is a muscular structure.
It is clearly separating thoracic cavity यानी upper cavity from the abdominal cavity यानी lower cavity. This is जहाँ पे lungs है वो thoracic cavity, जहाँ पे बाकी के digestive system के part वगैरह है that is the abdominal cavity and this is the partition. अब यहाँ पे ये जो diaphragm का structure दिख रहा है आप उसको flat कहोगे, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैम हमको तो ये भी अभी थोड़ा सा कर्व दिख रहा है. वी आर डीलिंग विद द लिविंग सिस्टम. तो लिविंग सिस्टम में फ्लैट यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इमेजिन मत करो. फ्लैट यानी ये जितना डोम शेप स्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजन में फ्लैट. ओके, नाउ हियर यू हैव टू कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर. आपको पता है कि अगर किसी कंटेनर में का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो उसमें जो एयर है उसका प्रेशर कम रहेगा. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर वॉल्यूम कम है तो उसमें जो एयर उतनी ही पहले जितनी जो एयर थी उतनी ही अगर एयर प्रेजेंट है तो उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा. राइट, नाउ दैट सेम थिंग वी नीड टू अप्लाई हियर. We are considering at present the inhalation, जिसको दूसरी टर्म है inspiration. Okay, to take in is to inspire, is to get the air inside. Right? तो हम क्या कर रहे हैं? We are considering inspiration. These are the lungs. Here the rib cage is present. This diaphragm. Now the diaphragm is in the contracted structure. Contract हुआ यानी क्या हुआ? तो यहाँ नीचे जो मसल्स थे जो डायफ्राम से अटैच्ड है ये उसको नीचे की तरफ खींच रहे. सो ये जो रिलैक्स्ड कंडीशन है उसके कंपैरिजन में ये डायफ्राम जो है ये फ्लैटेंड कंडीशन में हमको दिखेगा. दिस इज रिलैक्स कंडीशन, दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन. So now as the diaphragm is pulled towards the lower side, as it is getting flattened, here the space for lungs will be increased. At the same time ये ribs के बीच में जो EISM present है, जो external EICM present है, जो external intercostal muscles है, they are also contracted. जब ये सब मसल्स जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो एट द सेम टाइम एंटायर रिब केज इट विल बी पुल्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड. और जगह बन गई, 80% जगह बनी क्योंकि डायफ्राम फ्लैटन हो रहा है. बाकी की जगह बन गई, बढ़ गई क्योंकि ये EICM कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. And ultimately now the lungs are getting full volume, full space to increase the volume. वहां पे पूरे जगह पर वो lungs spread हो जाएंगे. लेकिन जैसे ही lungs के अंदर की स्पेस बढ़ी, lungs के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, वहां पे एयर प्रेशर कम हो गया. Now you know that air moves from higher pressure to lower pressure. ये एनर्जी के लिए एप्लीकेबल है, ये एयर के लिए एप्लीकेबल है, ये वाटर के लिए एप्लीकेबल है. राइट, सो एयर कैन मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. जब यहाँ पे लंग्स एक्सपांड हुए तो ये प्रेशर इतना कम हो गया दैट द एयर विल एंटर फ्रॉम आउटसाइड. क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है एयर का, सो एयर विल ट्राई टू गश इनसाइड, टू एंटर इनसाइड, thus filling the lungs. So this is inspiration or this is inhalation. Right, now this is active process. Active process किसको कहा जाता है? Active process is one where energy is utilized. Right, अब ये दोनों भी डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट या फ्लैटन करने के लिए और रिब्स को ऊपर लेने के लिए, फॉर बोथ द केसेस energy will be required. So inspiration or inhalation, it is
inhalation, it is an active process because energy is required. What about expiration or exhalation? कुछ भी नहीं, बस वो जो पकड़ के रखे थे मसल्स ने, खींच के रखा था डायफ्राम को, उन्होंने छोड़ दिया. जो EICM कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो रिलैक्स हो गए. इस प्रोसेस को यानी सिर्फ रिलैप्स बैक, जैसे आपने किसी रबर को खींच के रखा और आपने उसको छोड़ दिया तो वो रिलैक्स हो गया. वहां कहाँ एनर्जी लगी? जब आप खींच रहे थे तब एनर्जी लग रही थी, छोड़ने के लिए एनर्जी नहीं लगी. तो उस वक्त यानी जब एक्सहेलेशन के टाइम पे जस्ट जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स थे वो रिलैक्स हो गए. So no energy will be required. The diaphragm, it will relax. It will move up to its normal dome shape condition. EICM, they will come back to their normal relaxed condition. तो उसकी वजह से, डायफ्राम की वजह से लंग्स नीचे से पूरे उसकी स्पेस कम हो गई, वो दबाए जा रहे हैं लिटरली, राइट? दे आर प्रेस्ड फ्रॉम लोअर साइड. यहाँ पे क्या हुआ? द रिब्स आर कमिंग टुवर्ड्स द लंग्स, तो वो ऊपर से भी दबाए जा रहे हैं. सो नाउ दिस रिब केज, इट इज कमिंग डाउनवर्ड and therefore the lungs are being pressed. Because of that, the internal space is reduced, the internal volume is reduced. Now the pressure of same amount of air जो पहले आई थी उसी air का pressure, now it is more. Therefore, because here the pressure is more and atmospheric pressure is less, so air will try to go out and air is exhaled, right? So that is exhalation, which is a passive process. It does not directly requires the energy. Therefore, exhalation, it is passive process. Just relaxation of diaphragm and EICM will take place. I hope this is understood to you. एक बार रीडिंग कर लेते हैं whatever is given and thereafter we will go for that video. I hope you have noted these points. Okay. When we breathe in air, the muscles of the diaphragm contracts and moves downward and the chest cavity expand and air enters into the lungs. When we breathe out air, the muscles of the diaphragm relax and moves upward and the chest cavity contracts and air goes out of the lungs. इंस्पिरेशन जो मैंने थोड़ा बहुत एडिशनल बताया वो एक बार पढ़ लेते. किसी का कुछ रहा होगा नोट करना तो अब इसमें से नोट कर लीजिए and then this part from NCERT it will be over. So inspiration, it is an active process which involves contraction of diaphragm and external intercostal muscle. Diaphragm is responsible for 80% of breathing volume during quiet normal breathing. The diaphragm muscle contract and the dome shape of diaphragm, it changes to flat. With the contraction, the lower surface of the lungs is also pulled forward. The EICM contract and the ribs move outward, upward and increase the volume of thoracic cavity. Lungs expand and air is drawn into the lungs. इसके exactly opposite expiration or exhalation. I am waiting for you for 2 minutes. If you want to note anything, कुछ रहा है, कुछ note करना है, so there will be 2 minutes gap in between and thereafter we will go to that video.
Do anybody want me to wait further? Please raise your hand अगर रुकना है तो. If you want me to wait, please raise your hand. Okay guys, fine. चलो. So it's a 5-minute video. Observe it carefully and then we will move ahead. Respiratory system. To understand the process of breathing. In humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue, known as the diaphragm, are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of the muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of the alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Summary. In the thorax region, the rib cage and the diaphragm are observed. So I hope this is clearly understood. Okay. Let us start with the state board portion, where we need to understand that how respiration takes place at the cellular level.
कि यहाँ तक समझ में आ गया कि ओके द ऑक्सीजन इट वाज कमिंग इनटू द लंग्स, from lungs, that means from alveoli. It is going into the blood. In blood, RBCs, particularly hemoglobin in RBC, it is accepting that oxygen. Then it will be passed to all the body parts. यानी हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक एंड एवरीबॉडी एवरीथिंग, फिर हर बॉडी पार्ट्स के टू एवरी सेल, एंड देन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड ईच सेल. Now two things are coming to the cell. एक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या आया? उस रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन आया, राइट? एंड द अदर वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो न्यूट्रिएंट थे, those were also added to the blood. So through blood, it is again coming to the cell. So nutrients, particularly we are talking about glucose, it is coming to the cell. So now the cell is having oxygen, the cell is having glucose. What to do with the help of this oxygen to glucose, that we are going to study inside the cell, how this glucose will be broken down, how the energy which is present in the bonds of glucose, they will be utilized to make ATP, that we have to understand. Okay, so this entire thing, it will be taking place in 3 steps. First step is glycolysis. नाम से ही समझ में आता है, breakdown of glucose. Then second step which takes place inside the mitochondria, that we have to study is Krebs cycle. And the third step is electron transport chain, कि उसमें actual oxygen will be required and actual ATP will be created. So basically, if we try to understand cellular level of respiration, we need to understand what is glycolysis, what is Krebs cycle, and what is electron transport chain. Now, I sadly declare that this process is going to be a little difficult for you. The reason is कि बहुत थोड़ा थोड़ा स्टेट बोर्ड में दे दिया, ये अज्यूम करके कि बाकी सब चीजें आपको पता है. So most details are not given, and without those it is expected that you should understand this system. तो थोड़ा lengthy होने वाला है ये portion. Prepare yourself for that and let us start that entire journey. Okay. So cellular respiration, it is completed in 3 stages. First, glycolysis. Second, Krebs cycle, and third, electron transport chain. ओवरऑल पहले समरी से शुरुआत करते हैं, एक आउटलाइन से शुरुआत करते हैं कि ये तीनों स्टेप्स में होगा क्या, उसके बाद फिर उसको एक एक को सेपरेटली स्टडी करेंगे. So here 6 carbon compound, that is glucose is shown. ऐसे ही लिखो ताकि आपको ध्यान में आ जाए, पूरा स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है. 6 carbon are shown, which are the main components to undergo oxidation. Now it will undergo glycolysis. Where this glycolysis will take place? It will take place in the cytoplasm of the cell. Okay, and during this glycolysis process, 2 ATP molecules are generated.
Now there are two fate for this end product of glycolysis. हमने पहले भी देखा है कि glycolysis it ends into the pyruvic acid. मैंने ये जो PA लिखा इसका मतलब it is pyruvic acid. It is end product of this glycolysis, breakdown of glucose in cytoplasm into two molecules of pyruvic acid. Now this pyruvic acid, either it can enter into the mitochondria or in the cytoplasm, it can undergo fermentation without oxygen. अगर oxygen के absence में process हो रही है, so then it is fermentation. It may result into alcohol production or it may result into lactic acid production. लेकिन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो कि एंड में यहाँ पे हमको उसकी एंट्री दिख रही है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर प्रोसेस होना है तो देन दिस पायरुविक एसिड इट शुड एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया. Inside the mitochondria, this Krebs cycle is going on. In this Krebs cycle, again 2 ATP molecules will be generated with the removal of carbon dioxide molecule. कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल in one Krebs cycle. So 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स in 2 Krebs cycle. 2 पायरुविक एसिड एंटर होंगे ना, राइट? क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल. So in one Krebs cycle 3 carbon dioxide will be released and in another Krebs cycle 3 carbon dioxide. तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीडाइज होके रिलीज हो जाएंगे. दैट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द Krebs cycle. नाउ व्हाट फर्दर? द एंड प्रोडक्ट ऑफ Krebs cycle. क्या है वो एंड प्रोडक्ट्स? तो वो है NADH, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, एंड FADH2. ये मत लिखना, अगर आप ये पूरी आउटलाइन नोट कर रहे हो प्लीज डू नॉट राइट इट. तो ये Krebs cycle के जो एंड प्रोडक्ट्स है, दे विल एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अल्टीमेटली लास्टली द ऑक्सीजन विल बी एंटरिंग एंड water will be coming out with release of lot many ATP molecules, about 34. ओके, तो बचे कुचे जितने एटीपी बनने वाले हैं वो सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिलीज होने वाले हैं. सो अगर हम ये सारे काउंट करें, 34 प्लस 2 ग्लाइकोलिसिस के भी मिला ले, तो टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, while only 2 ATP molecules in anaerobic respiration, that is fermentation. Okay, I am waiting for you to note this down and thereafter we will move ahead. Per Krebs cycle 1 ATP. So 2 Krebs cycle 2 ATP. यहाँ पर भी 6 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम 2 cycles. Please raise your hand if you want me to wait. Okay, Pranav, fine.
Tell me if it is done. Done? Yes, ma'am, done. Okay. Fine. Let us see the first step. We are talking about glycolysis. Again, the same thing is shown here. And in what way the entire process is going on, let us see. So here glucose, it is a 6-carbon compound. Therefore, it is represented in this way. When the glucose is being broken down in 2 molecules of pyruvic acid, तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है ना, इसलिए यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स दिखा दिए. सो दीज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर क्रिएटेड. सॉरी, मैं ये पायरुविक एसिड एंड में है, जस्ट 1 मिनट. यहाँ पे हियर 2 इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर क्रिएटेड. मैं अभी आपको पूरी साइकिल दिखाऊंगी, उस वक्त आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि इंटरमीडिएट्स, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, दोज आर क्रिएटेड हियर. सो हियर 2 intermediates are created. This we can say first phase of glycolysis, and in this first phase use of 2 ATP is taking place. Please mind it कि यहाँ पे ATP ये पहली फेज में बना नहीं, यूज हो गया, राइट. ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट फेज में ATP इज ब्रोकन डाउन, it is utilized and 2 ADP are created. The energy is used to break this glucose molecule into 2 intermediate molecules. Thereafter, these 2 intermediate molecules, they will be converted into the pyruvic acid. ये process में 4 ADP, they are converted into 4 ATP molecules. इसीलिए हम कहते हैं कि overall gain of ATP in glycolysis is 2 ATP. कहां से आया? तो 4 जनरेट हुआ और 2 यूज हो गया पहली स्टेप में. सो थ्रू दिस ओवरऑल गेन इज 2 ATP molecules, right? So glycolysis, at the end of it we will get 2 ATP molecules, 2 pyruvic acid molecules. उसके साथ में एक रिडक्शन प्रोसेस हुई है. Which reduction process? This NAD, which is a coenzyme. मैं अभी उसका लॉन्ग फॉर्म आपको बताऊंगी. This coenzyme it will be accepting the hydrogen. कहां से आया हाइड्रोजन? ये इंटरमीडिएट से आया. तो इसमें से जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं बॉन्ड ब्रेक होते होते, वो कौन एक्सेप्ट करेगा? वो ये NAD एक्सेप्ट करेगा. दिस NAD it will be converted into NADH. अब ये NADH का क्या होने वाला है वो हम बाद में देखेंगे. ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. So net gain of glycolysis, it is 2 ATP molecules, 2 pyruvic acid molecules and 2 NADH molecules. 2 pyruvic acid molecules, they will go to mitochondria. ATP, it will be utilized for the reactions in the cytoplasm, and NADH, it will go into the mitochondria for further processing. So it will go to mitochondria. This will go to mitochondria अगर aerobic respiration है तो, and this will be used in cytoplasm. So this is the rough idea of glycolysis. इसकी समरी लिख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में एग्जैक्टली क्या क्या होता है.
डू यू वांट मी? आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, 1 मिनट में नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे जाती हूँ. प्लीज रेज योर हैंड इफ द राइटिंग वर्क इज लेफ्ट. किसी का रहा है, रुकना है तो हाथ ऊपर कीजिए. ओके गाइस. श्वेता, Shweta, do you want me to wait? No, ma'am, completed. Okay, ठीक. Right. So glycolysis, where it is taking place in the cytoplasm. Already आपने लिख लिया है. No oxygen is required. NCERT का पोर्शन पढ़ रहे थे, उसी वक्त हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए. Energy yield net gain of 2 ATP at the expense of 2 ADP लिखना था यहाँ. So energy yield is 2 ATP molecules, net energy yield. What we are getting? 6 carbon glucose से 2 molecules of 3 carbon pyruvate. That is also given in that reaction. And the free electron and hydrogen, वहां पे क्या हो रहा है? Substances का oxidation हो रहा है. जो भी ग्लूकोज है, इंटरमीडिएट्स है, उस सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अभी अभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, रोहन सर ने पढ़ाया आपको. सो ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ये होने के बाद वो इंटरमीडिएट तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन ये जो मटेरियल निकला है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, ये कौन एक्सेप्ट करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा NAD, जो वही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, विच इज ऑर्गेनिक आयन कैरियर, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H+. अब ये NAD है क्या? NAD का लॉन्ग फॉर्म पहले लिख लेते हैं. इट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. स्ट्रक्चर याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं. नाम ऐसे की ऐसे याद करना है. नाउ व्हाट इज इट? इट इज अ कोएंजाइम. अब ये कहां से आ गया? सो एंजाइम्स आर नेचुरल कैटलिस्ट. कैटलिस्ट सबको पता है, of our body. Some substances help enzymes to complete a reaction. They are called कोएंजाइम्स. क्या है ये? हेल्पर्स है. किसके हेल्पर्स है? एंजाइम के हेल्पर्स है. राइट. सो इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कोएंजाइम. Here in the cytoplasm, this particular coenzyme called NAD is present. It will immediately accept the electron and proton from the intermediates. It will be reduced. In this process, the intermediate in glycolysis, it is oxidized. Is it understood, guys?
Shubhankar, is it understood? शुभांकर, बोलो प्रणव। मैम वो क्या रहता फिर मैम, निकोटानामाइड एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट? वो NADP रहता है, जनरली वो फोटोसिंथेसिस में ज्यादा यूज होता है प्लांट सिस्टम्स में, और NAD जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में ज्यादा यूज होता है। तो दैट मैम इज ऑल्सो कोएंजाइम, दैट इज ऑल्सो अ कोएंजाइम। देन मैम इट इज इन आवर बॉडी और नॉट? In our body, yes, it is present in our body. ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, भार्गवी, मैम बोलो हेलो बेटा, बोलो मैम, बोलो। फिर यहाँ पे मेन एंजाइम कौन सा है? यहाँ मेन एंजाइम कौन सा नहीं, कौन से है, तो पूरी जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये 10 स्टेप प्रोसेस है, राइट? तो इसीलिए वो सारे एंजाइम्स के बारे में हमको बात, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को वो पूरी जो थिंग है, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, दैट यू आर नॉट सपोज टू रीड और मेमोराइज। तो आई विल शो यू दोज एंजाइम्स, ओके? एंड मैम ये जो 2 ADP मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो वो हाँ। पूरे एक इसमें जनरेट हुए हैं कि मतलब ये सिंगल स्टेज है कि ऐसी और एक स्टेज होंगी, और फिर मतलब एक स्टेज दो स्टेजेस में हो रहा है। मैं वही बता रही हूँ, मैं आप लोगों को वो चेन बता रही हूँ, हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, वो पेपर में भी नहीं आने वाली, लेकिन वो देखने से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके? यस मैम, थैंक यू। हाँ, ठीक है। ओके गाइस, राइट, हियर इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें मैंने कहा ATP यूज हो गया। तो देखो, आपको ग्लूकोज से ये इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ तक की वो स्टेप है। I again will repeat that you do not need this chain, so do not write any of the thing here, just have a little look over it and then we will move to the Krebs cycle, right? So ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप होके ये इंटरमीडिएट बना। अब ये फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज में एक जगह पे ATP यूज हुआ, ADP बन गया, दूसरी जगह पे ATP यूज हुआ, ADP बन गया, और अल्टीमेटली ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। ठीक, यहां तक। अब दूसरी स्टेप में ये कौन सी है, ये खर्च करने वाली स्टेप है। अब दूसरी जो फेज है, उस दूसरी फेज में here ADP, it will be converted into ATP, and here again in the next step ADP will be converted into ATP। तो ये हर जितनी एरोज आपको दिख रही है उतने सारे स्टेप्स में ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होता है। पहले फेज में ATP यूज अप हो जाएगा और दूसरे फेज में ATP जनरेट होगा। पहले फेज में जब ATP यूज अप हो गया, उसके बाद जब सेकेंड स्टेप इमीडिएटली शुरू हुई, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बनने की जो स्टेप है, वहां पे हाइड्रोजन रिलीज हुआ। दिस हाइड्रोजन विल बी टेकन अप बाय द NAD and it will be converted into NADH plus H plus। ओके, सो मैंने पहले जो लिखवाया है बस उतना ही आपके काम का है। बोलो प्रणव। मैम ये जो प्रोसेस आपने दिखाई है 2 पेज में, मैम हाँ। ये आपके काम में आएंगी ये या मैं कब काम में आएंगी? ये आपको आएगी 11th में। 11th जब खत्म होने लगेगा ईयर के एंड में, तो उस वक्त जब आप प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे, अगर आपने मेडिकल लिया, तो आपको काम में आएगी। ओके मैम। ओके, नाउ दिस इज द क्रेब्स साइकिल। सेकेंड, मैंने अभी आपको जो फ्लो चार्ट दिया था
उसमें मैंने बताया था कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन हो रहा है, so then pyruvic acid, it will enter inside the mitochondria and there it will enter into the Krebs cycle. Now why the name is Krebs cycle? Because it was discovered by Hans Krebs. इस बायोलॉजिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए उसके ऑनर में द नेम इज क्रेब्स साइकिल, राइट? नाउ हियर वी आर ऑब्जर्विंग द माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर. दिस माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर आपको 9th से बहुत अच्छी से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है. आपको ये भी पता है कि इसके सेंट्रल रीजन में मैट्रिक्स प्रेजेंट है और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्रिस्टी के फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट? Now we are concerned only with the matrix of the mitochondria. तो Krebs cycle कहाँ होती है? Krebs cycle takes place in the matrix of mitochondria. जैसे glycolysis it takes place in the cytoplasm, वैसे Krebs cycle in the matrix of mitochondria. Glycolysis को हम लोग एक overall chain कह रहे हैं. क्रेब्स को, ये क्रेब्स साइकिल को या जिसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं, इसको हम साइक्लिक रिएक्शन कह रहे हैं. तो साइक्लिकली ये रिएक्शन कंटिन्यू शुरू रहेगी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड विल बी जनरेटेड, NADH विल बी रिलीज्ड, FADH2 विल बी फॉर्म्ड. तो आपके स्टेट बोर्ड बुक में यही इंफॉर्मेशन दी हुई है. पहले मैं स्टेट बोर्ड बुक की इंफॉर्मेशन बता देती हूँ, फिर थोड़ा सा डिटेल लेंगे. So our textbook says that inside the matrix of mitochondria, this Krebs cycle takes place. This is also called as citric acid cycle. This is also called as tricarboxylic acid cycle, TCA cycle. क्योंकि सबसे पहला कंपोनेंट जो इसमें बनेगा वो है साइट्रिक एसिड, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो साइट्रिक एसिड. ये साइट्रिक एसिड में 3 COOH ग्रुप आर प्रेजेंट. कितने COOH है? 3. तो इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो इट इज हैविंग 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस सेम कंपाउंड, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज TCA cycle, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड cycle. What are the end products of this cycle? The end product of one Krebs cycle is 3 carbon dioxide molecules, 1 ATP molecule, 4 NADH molecules, and 1 FADH2 molecules. आपके काम की इतनी ही चीज है. क्या बना क्रेब्स साइकिल के एंड में? एक क्रेब्स साइकिल के एंड में 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ATP, 4 NADH एंड 1 FADH2 मॉलिक्यूल. अब 2 पायरुविक एसिड एंटर होंगे तो फिर इस सब को डबल करना पड़ेगा, राइट? In this way, this entire process, it is completed in the matrix. अब इसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं. ओके, बोलो प्रणव. मैम स्टेट बोर्ड में सब आधा आधा क्यों दे देते? जैसे हमने पहले चैप्टर में भी देखा था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और आगे की पोस्ट प्रोसेस दे दी, वो भी आधी आधी लिख के दे दी, और इसमें भी क्रेब्स साइकिल को आधा आधा लिख के दे दिया. जाने देना प्रणव, अब तो क्यों टेंशन ले रहा, जो है दिया हुआ वो पढ़ना पड़ेगा ना. ओके मैम, सॉरी. हाँ ठीक है. So pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria. The crucial events in aerobic respiration are the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving 3 molecules of CO2. Already आपने उसके end product लिख लिए होंगे, 3 carbon dioxide in 1 Krebs cycle. The passing on of the electrons removed
as part of the hydrogen atoms to molecular, ये वाली चीज जो है ये हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखेंगे कि ये हर स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एटीपी सिंथेसिस के लिए लास्ट में यूज होती है. सो दिस आई एम नॉट इन डिटेल एक्सप्लेनिंग एट प्रेजेंट. वी विल जस्ट स्टिक टू क्रेब्स साइकिल एट प्रेजेंट. The first process takes place in the mitochondria, matrix of mitochondria, while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria. तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप क्रिस्टी कहते हो, जिसके पूरे फोल्ड्स को आप क्रिस्टी कहते हो, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी सेकेंड प्रोसेस होगी और फर्स्ट प्रोसेस जो क्रेब्स साइकिल है वो मैट्रिक्स में होगी. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट. ठीक, अब क्या हो रहा है सबसे पहले यहाँ कि दिस पायरुविक एसिड इट विल, ये आपको है नहीं, मैं यहाँ पे आपको इनऑल बता देती हूँ कि दिस इज द क्रेब्स साइकिल. मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूँ जितना आप लोगों को जरूरी है. प्लीज डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज इट. किसी को शौक है तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन मेजर में इस पे मैं डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछूंगी. जस्ट जो दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में उसको थोड़ा सा मैं ढंग से इलैबोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ. So this pyruvic acid, it has entered in the matrix and it will be undergoing first decarboxylation. नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पे. कार्बन डाइऑक्साइड it will be coming out. So the very first step that will take place is decarboxylation. यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, 3 कार्बन एंटर हो रहे हैं, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड आ गया बाहर. अब उसी के साथ साथ दिस पायरुविक एसिड इट इज ऑक्सीडाइज्ड यानी इलेक्ट्रॉन भी निकला, हाइड्रोजन भी निकला. वो एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ NAD अवेलेबल है. सो 1 NAD इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H+. ओके, एंड वन मोर कोएंजाइम जो एंजाइम को यहाँ पे हेल्प करता है, कोएंजाइम A, इट विल कम टू द हेल्प. तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद, हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या बचा? एसिटिल ग्रुप बचा, यानी 2 कार्बन और उसके साथ ये कोएंजाइम A अटैच हो गया. नाउ इट इज एंटरिंग इनटू द साइकिल. As it is passing through the cycle during different steps, the NADH is generated. यहाँ पे ये first NADH, this is second, this is third and this is fourth, right? और इस step में FADH2 is generated. यहाँ पे this GTP is generated which will be later converted into ATP. जैसे हमने लिखा था वो ओवरऑल समरी में कि 1 ATP in 1 Krebs cycle, 2 ATP in 2 Krebs cycle. तो यहाँ ये GTP जो बना it will immediately convert into the ATP. अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? 2 कार्बन एंटर हो रहे हैं तो 2 कार्बन निकलने भी चाहिए. देखो यहाँ पे ये 2 कार्बन दे आर टेकन बाय अ 4 कार्बन कंपाउंड. इन दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने वो भी पढ़ा है, रोहन सर ने अभी 2 दिन पहले 1-2 दिन में आपको ये पढ़ाया है. सो दिस एसिटिल ग्रुप एंड दिस oxaloacetic acid, they will undergo combination reaction and they will make a 6 carbon compound. सीधे सीधे कॉम्बिनेशन ही हो रहा है ना. अब ये 6 कार्बन कंपाउंड इट विल अंडरगो 1 decarboxylation. क्या बचा? 1 5 कार्बन कंपाउंड. एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. फिर ये 5 कार्बन कंपाउंड से दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. सक्सिनिक एसिड यानी 4 कार्बन कंपाउंड इज क्रिएटेड. तो 4 कार्बन कंपाउंड से साइकिल शुरू हुई थी. 4 कार्बन कंपाउंड से का रीजनरेशन होके ये साइकिल वापस से खत्म होगी. ड्यूरिंग दिस 1 2 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 2 3 and 4 NADH, 1 FADH2 and 1 ATP. It is generated during 1 Krebs cycle. Double it, during 2 Krebs cycle 2 pyruvic acid
they will be completely burnt, they will be completely oxidized. I am waiting for 1 minute. If you are having any question, go ahead. Otherwise, we will stop here. Okay. So, हाँ बोलो हर्ष. मैम ये पीपीटी ग्रुप पे भेज देना ना. ये पीपीटी ग्रुप पे भेज दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जानबूझ के अभी नहीं पढ़ा रही, क्योंकि ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसमें और मैं पढ़ाऊंगी तो मुश्किल होगी. सो देयरफॉर आई वाज इंटेंडेड टू कंप्लीट दिस, लेकिन इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग. हाँ बोलो प्रणव. मैम बस वो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट समझा दो. ये ऑक्सैलोसिटिक एसिड कहाँ है, कैसे बन रहा है और कहाँ से बन रहा है, और ये साइक्लिक एसिड. ठीक है, ये मैं बता देती हूँ. जिसको भी इंटरेस्ट है दे स्टे. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस साइकिल, एंड जिसको भी लगता है कि नाउ दिस मच इज सफिशिएंट फॉर आवर एग्जाम, दे कैन लीव. तो एग्जाम के हिसाब से, स्टेट बोर्ड के हिसाब से जितना जरूरी था यहाँ तक का पोर्शन मैं आपको बता चुकी हूँ. यू कैन लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम. And those who are interested, I am explaining this cycle. Okay. So I am talking about कि pyruvic acid, it has entered in the matrix, and in the matrix what is happening कि पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन होके पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होके अल्टीमेटली एसिटिल कोएंजाइम ए बना. अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए का आगे क्या हो रहा है, तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको मैं OAA लिख रही हूं, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. ओके, इट इज देयर इन द मैट्रिक्स. राइट. तो इस मैट्रिक्स में ये एसिटिल कोएंजाइम ए भी एंटर हो गया. Now this acetyl coenzyme A, मैं इसका सिर्फ यही इतना ही ग्रुप लिख रही हूँ. So it is 2 कार्बन कंपाउंड. तो ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये दोनों का जब ये दोनों का ज्वाइनिंग होगा तो इट विल रिजल्ट इनटू द साइट्रिक एसिड. अब ये साइट्रिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन. यानी क्या हुआ कि जो बचे कुचे कार्बन थे, जो ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से एसिटिल ग्रुप, जो कार्बन आए थे, अब वो कार्बन ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने एक्सेप्ट कर लिए. ओके, नाउ दिस साइट्रिक एसिड इट विल अगेन अंडरगो ऑक्सीडेशन. क्या हो रहा है यहाँ? साइट्रिक एसिड से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो NAD ने लिया ना, right? So this hydrogen and electron again it is released out, and here NADH is created. लेकिन जब ये रिडक्शन हो रहा है उसी वक्त उसी एंजाइम ने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल लिया. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन कंपाउंड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. अब ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड अगेन अदर एंजाइम इट विल रिमूव 1 कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड NADH विल बी क्रिएटेड. कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट, और ये स्टेप्स होते वक्त एनर्जी भी रिलीज हो रही है जो ATP के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी. अब इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो सक्सिनिक एसिड बचा. Right? Now this succinic acid, it is 4 कार्बन कंपाउंड. शुरुआत हुई थी 4 कार्बन कंपाउंड से, यहां तक हम आ गए 4 कार्बन कंपाउंड पे. लेकिन सक्सिनिक एसिड तो एसिटिल ग्रुप नहीं एक्सेप्ट कर सकता, राइट? तो ये सक्सिनिक एसिड को फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है एक और एंजाइम के हेल्प से. मैलिक एसिड को वापस उसका ऑक्सीडेशन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये रिएक्शन, ये साइकिल वापस से कंटिन्यू करेगी. तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रीजनरेट करना बहुत जरूरी है. Every time this OAA is generated, then it will be available to accept the acetyl group, then the cycle will be continue. अगर ये 4 कार्बन कंपाउंड वापस से नहीं बना तो ये साइकिल नहीं चल सकती.
Is it understood? मैम ये सारी चीजें मैट्रिक्स में हो रही ना, मतलब क्रिस्टे में इस क्रिस्टे में कुछ नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। क्रिस्टे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। और मैम ये चेन कब तक घूमती रहेंगी, मतलब एंड है क्या कोई साइकिल का? जब तक आप जिंदा हो। अच्छा मैम, मतलब आते रहेगा, ग्लूकोज ब्रेक होते रहेगा, ग्लाइकोलिसिस होते रहेगा, और फिर ये साइकिल होती रहेंगी, ऐसा क्या मैम? अरे मुझे बता प्रणव, मैं अगर 100 साल की भी हो गई तो मैं सांस भी लूंगी और मैं खाना भी खाऊंगी। यस मैम। हाँ, तो उस फूड को ब्रेक भी करना पड़ेगा और एनर्जी भी रिलीज करनी पड़ेगी। यस मैम, अंडरस्टूड। डन। ओके, चल, सो लेट अस लीव गाइस, and we will meet next time with electron transport chain, and ये स्टेट बोर्ड का पोर्शन एंड करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट